Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel Knowledge Site Official. I am Azam Mughal and today we shall discuss SST FGEI का कंप्लीट सॉल्व पेपर जो कि आज 1 जून 2025 को कंडक्ट हुआ। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की जानिब। पहला MCQ था द सिनोनिम ऑफ वर्ड सेरेंडिपिटी। इसका करेक्ट आंसर था फॉर्चून। नंबर 2, हिज डैश रिमार्क्स at the conference enlightened many of the attendees who found them offensive. The correct answer was felicitous. Number 3, the antonym of word trepidation. तो इसका करेक्ट आंसर था कॉन्फिडेंस, क्योंकि ट्रेपिडेशन कहते हैं शर्मीलापन को, और इसका करेक्ट आंसर जो है एंटोनिम बनता है कॉन्फिडेंस, एतमाद। Number 4, she studied hard yet she didn't pass the exam. Choose the correct sentence structure. The correct answer, compound sentence. Number 5, choose the sentence with an adjective clause in it. The correct answer was the carpet you bought last year has rooted. Number 6, identify the sentence which has non-defining clause. My brother who live in Islamabad is a doctor. Number 7, identify the inverted sentence. The correct answer was loudly barked the dog. Number 8, the plane flew in formation dash the field. The correct answer was above. Number 9, if I had a degree, I could have applied for the vacancy. Select the correct sentence. The correct answer was past perfect tense. Number 10, identify correct preposition. She is looking forward dash the day. The correct answer was to. Number 11, in Conference for Educational Development in 1951, the main hurdle identified was lack of dash. किसकी कमी थी? 1951 में जो बताया गया था कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो मेन प्रॉब्लम था वो ट्रेन टीचर्स की कमी थी। नंबर 12, पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स फॉर द ईयर 2021 to 2022 रिफ्लेक्ट्स नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इज़ 26.2 मिलियन। जो पाकिस्तान के एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स थे 2021 से 2022, उनके मुताबिक जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर हैं वो 26.2 मिलियन हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25A इंश्योर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद द एज लिमिट 5 से 16 साल तक के बच्चों को तालीम जो है वो मुफ्त प्रोवाइड की जाएगी। नंबर 14, द स्कूल पॉलिसी शुड बी डोमिनेटेड बाय, स्कूल पॉलिसी जो है वो डोमिनेटेड बाय प्रोफेशनल एजुकेटर। द करेक्ट आंसर। नंबर 15, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल आर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेनरी फ्यूल ने बयान किए थे वो 5 थे। व्हाट वाज द क्रिटिकल ट्रेट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल लीडर्स? द करेक्ट आंसर वाज फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। जो भी फैसला हो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। Number 17, identify the characteristics of effective school administration. The correct answer was ability to build relationship with stakeholders. Number 18, how do senior school teachers contribute to curriculum development of Pakistan? By providing input and feedback. 19, educational management constitution contingency planning refers to. The correct answer was planning for unexpected events and changes. Number 20, if the manager is doing evaluation of a project, he is at the stage of. The correct answer was controlling. अगर एक मैनेजर जो है इवेल्यूएशन की स्टेज पे है, प्रोजेक्ट को इवेल्यूएट कर रहा है, तो वो कंट्रोलिंग स्टेज पे है। विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव? मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जिसमें हम क्लियर गोल्स को सेट करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को? तो वो प्लानिंग पहली स्टेज होती है। Primary benefit of using management information system in education management. The correct answer was improved decision making. Number 23, process of learning through observing and imitating others is called social learning theory. ऐसी थ्योरी जिसमें हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उनसे सीखते हैं, उसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गिवन बाय, लॉ ऑफ इफेक्ट को एडवर्ड थॉर्नडाइक ने पेश किया था।
Who developed the theory of self-efficacy? It was presented by Albert Bandura. According to scheme of theory, memory schemes are modified based on new information is called accommodation. स्कीमा की जो थ्योरी है उसमें जब हम ओल्ड इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन में फिट करने के लिए, तो उसको अकोमोडेशन बोलते हैं. द मॉडल ऑफ करिकुलम विच कुड नॉट मूव अबव एलिमेंट्री लेवल स्टेज. द करेक्ट आंसर वाज एक्टिविटी करिकुलम. द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम evaluation was presented by. The correct answer was Tyler. Number 29. Who said curriculum is a written plan? The correct answer was Smith, Stanley and Shore. The word scaffolding in teaching refers to. The correct answer was temporary adjustable support. इसमें स्टूडेंट्स को किसी भी स्किल को सीखने के लिए टेम्परेरी जो है वो एक सपोर्ट दी जाती है, और जैसे वो स्टूडेंट उस स्किल को सीख लेता है तो वो जो टेम्परेरी हमने सपोर्ट दी होती है उसको हम ग्रेजुअली जो है वो रिमूव कर देते हैं. द मेथड विच इन्हांस स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट स्किल. द करेक्ट आंसर वाज competency based learning. Number 32. For better teaching learning process, the best method is. The correct answer was project method. Extension technique of classroom management is where teacher any negative behavior ignore करता है negative behavior को. तो correct answer ignore. Select one strategy to promote engagement of students in classroom. classroom में students की engagement को बढ़ाने के लिए group work पे focus किया जाता है. correct answer group work. Which strategies is effective for managing classroom behavior of students? The correct answer was redirecting misbehavior. Number 36. Which approach fosters a positive classroom environment? The correct answer was collaborative activity. Test mean for prediction on a certain criterion are called. The correct answer was criterion reference test. Criterion reference test ऐसे होते हैं जिसमें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक सेट क्राइटेरिया होता है, एक सेट स्टैंडर्ड होता है, उससे कंपेयर किया जाता है. द टेस्ट मेड टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स विद अदर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. ऐसा टेस्ट जिसमें एक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है उसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं. सैट, IQ टेस्ट, GMAT टेस्ट और एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट की टाइप्स में आ जाती हैं. तो करेक्ट आंसर वाज एप्टीट्यूड टेस्ट. विच स्टैटिस्टिकल मेजर इंडिकेट. आइटम एनालिसिस में कौन सी चीज़ आ जाती है? आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स. द करेक्ट आंसर. कोलैबोरेटिव रिसर्च इज अ टेक्निक टू एड्रेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू इम्प्रूव प्रैक्टिसेस. द करेक्ट आंसर वाज एक्शन रिसर्च. द टाइप ऑफ रिसर्च विच डील्स विद द क्लासरूम प्रॉब्लम्स. ऐसी रिसर्च जो क्लासरूम प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, उनको सॉल्व करती है, उसको एक्शन रिसर्च बोलते हैं. और ये टीचर्स कंडक्ट करते हैं और स्टूडेंट इसमें एज ए सैम्पल यूज़ होते हैं. द एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड बाय टीचर्स. Which organization is responsible for regulating and accrediting teacher education programs and institution in Pakistan? The correct answer was NCTE, National Council for Teacher Education. Textbook board was recommended to establish under 1959 की जो एजुकेशनल पॉलिसी थी उसमें जो है वो इसको रिकमेंड किया गया. What is the main focus of Pakistan Educational Development Goal? The correct answer was Education for All. EFA बोलते हैं Education for All कि तालीम जो है वो सबके लिए है. What is the key role of school counselor? School counselor का रोल क्या है? The correct answer was supporting holistic development. स्टूडेंट की holistic development पे काम किया जाए, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उसको सपोर्ट किया जाए. वाई इज़ द एप्टीट्यूड टेस्ट इंपॉर्टेंट इन गाइडेंस. गाइडेंस में एप्टीट्यूड टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? द करेक्ट आंसर वाज इट प्रिडिक्ट्स एकेडमिक पोटेंशियल. इसके ज़रिए से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं एकेडमिक पोटेंशियल की, स्टूडेंट्स की एकेडमिक्स एबिलिटीज़ को देख सकते हैं, उनको मज़ीद डेवलप करने के लिए जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. इन प्री स्कूल एजुकेशन द फोकस ऑफ द गाइडेंस इज़ अपॉन. द करेक्ट आंसर वाज एडजस्टमेंट. Number 50. The Roger counseling methods are adapted to problems involving. The correct answer was deep-seated emotional. स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक. SST का कंप्लीट पेपर मैंने आपसे डिस्कस किया. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.